आज हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर फेज स्पेस के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देख लें। इन ए क्लासिकल मैकेनिक्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y and z, and the particle is said to have 3 degrees of freedom। जिसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। किसी भी पार्टिकल्स के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई और एक जेड एक्सिस के लिए। The state of the motion of the particle is described in terms of velocity component x, y, z। यहाँ x dot, y dot और z dot होगा, यहाँ dot होगा, where dot indicates the differentiation with respect to time। Sometimes it is more convenient to use momentum coordinates px, py, pz, in which mx, my, mz is the mass of the particle. Instead of velocity coordinates, thus position of a single particle can be specified in terms of Cartesian coordinates x, y, z and its corresponding momentum coordinates, that is px, py, pz. In order to facilitate the application of law of mechanics, it is convenient to invent a scheme which can be used to describe the state, that is position और momentum। मतलब position और momentum से हम लोग किसी भी system के scheme को define कर सकते हैं for the particle at a particular instant। For this purpose we imagine a 6-dimensional, means 3 for position and 3 for momentum, 6-dimensional space in which 6 coordinates x, y, z and px, py, pz are marked along 6 mutually perpendicular axes in the space. The combined position and the momentum space is then called phase space। So हम लोग देखें कि phase space क्या होता है। phase space एक 6-dimensional space होता है जिसमें 6 कोऑर्डिनेट होते हैं। 3 कोऑर्डिनेट x, y, z जो होते हैं वो पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते हैं px, py, pz। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन को कहते हैं फेज स्पेस। A point in the phase space representing the position and momentum of the particular at some particular instant। किसी भी particular instant of में हम लोग उसी के पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल का। अब आते हैं डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू सेल्स। सेल्स में हम लोग फेज स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे डिवाइड करेंगे। The phase space is divided into 6-dimensional cells whose sides are, क्योंकि स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल सेल्स है, इसलिए dx, dy, dz पोजीशन के रिस्पेक्ट में हो गए और dpx, dpy एंड dpz ये हो गए मोमेंटा के रिस्पेक्ट में। Such cells are called phase cells। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे तो जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है ये सभी कंपोनेंट्स का वॉल्यूम के बराबर होते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन के बराबर होते हैं। सो डी टाउ अगर जो स्मॉल वॉल्यूम है, सो 6-डायमेंशनल स्पेस के लिए हो जाएंगे ये dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz। But according to uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle says that the product of position and momentum is less than equal to h, where h is Planck's constant। सो एक एक करके अगर हम लोग सबका कॉम्बिनेशन लें, dx का dpx के साथ, dy का dpy के साथ, dz का dpz के साथ, इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट होंगे। इस 3 रिलेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमको डी टाउ फाइंड करना है, सो h के साथ h और ये h 3 मल्टीप्लाई होके हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा डी टाउ इज लेस देन इक्वल टू h क्यूब। So a point in a phase space is actually considered to be a cell whose minimum volume is in order of h cube। इसका minimum volume कितना होगा, h cube के बराबर होगा, where h क्या है, h है Planck's constant। So particle in the phase space can be considered exactly located at the points x, y, z
position coordinate, and momentum coordinate px, py, pz, but can only be found somewhere within a phase cell centered at the point. For a state of an assembly of n system, we know that it can have described in terms of 6n coordinates. Why 6n coordinates? Because 3n position coordinates and 3n momentum coordinates. Now, the state of the particle can be defined in 6-dimensional space, conceptual space known as phase space और tau space को हम लोग क्या कहेंगे? Tau space कहेंगे. Let the system have small f degrees of freedom, which is number of independent coordinate needed for the description of the system, जो classical mechanics में हम लोग देख चुके हैं. The instantaneous configuration of a system can be described by a set of generalized position coordinate. Generalized position coordinate में हम लोग classical mechanics में देखे हैं, जिसको हम लोग denote करते हैं Q1, Q2, Q3 dot 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 QF. F क्या है? Number of degrees of freedom. And corresponding momentum coordinate P1, P2, PF. P1 से लेकर PF तक. तो इसमें टोटल F Q पार्टिकल है और यहाँ टोटल F. तो टोटल F और F कितने हो गए? टोटल 2F पैरामीटर्स हो गए. The state of the particle can be described by imaging a conceptual space having two dimensions, that is 2F. So this 2F dimensional coordinate momenta space so formed is called phase space of tau space. इसको हम लोग phase space कहेंगे. The set of number combination of position and momentum is regarded as a point in a phase space of 2F dimension. Total F for this position and then F for this momentum. Thus, the dynamical state of a system may be specified by locating a point in 2n-dimensional space in general. अगर n है तो n इसके लिए और इसके लिए total n plus n total 2n particles हो गया. The coordinate of the point being the values of n coordinates and n momenta which specify the state. Then space is referred to as the phase space and the point in called phase point. So अभी तक हम लोगों ने देखा कि फेज स्पेस क्या होते हैं, फेज स्पेस में कैसे हम लोग पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं, 6-डायमेंशनल स्पेस में फेज पॉइंट्स कहते होते हैं, फेज सेल्स में कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं फेज पॉइंट्स को, फेज स्पेस टोटल 2F डायमेंशन में कैसे होते हैं, जनरलाइज मोमेंटा और जनरलाइज कोऑर्डिनेट में कैसे हम उसको लिखते हैं. ये हमारा एग्जांपल लेंगे हम लोग फेज स्पेस डायग्राम एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का. तो लेट अस कंसीडर a 3-dimensional harmonic oscillator having mass m and a spring constant k, whose energy is given by total energy is given by kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy हम लोग जानते हैं ये होता है p square divided by 2m और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट के चलते होगा, तो ये होता है हाफ के क्यू स्क्वायर, जहाँ क्यू जो है मेरा पोजीशन कोऑर्डिनेट है और p मेरा मोमेंटम कोऑर्डिनेट है. So where the first term of the right is the kinetic energy and the second term is the potential energy. Q and P are the position coordinate and the conjugate momentum coordinate. अब इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो अगर इससे हम लोग वैल्यू फाइंड करें तो Q का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर, यहाँ से अलग अलग करके अगर फाइंड किया जाए टोटल E इज इक्वल टू, अगर हम p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m करें, इस टर्म को नेगलेक्ट करें तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2m e और p इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 2m e, जो हम लोग यहाँ पे लिखे p कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में लिखे. उसी तरह से अगर इस कोऑर्डिनेट को हम लोग नेगलेक्ट करें तो ये हो जाएगा हाफ के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ई, के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2e एंड q इज इक्वल टू रूट ओवर 2e बाई डिवाइडेड बाई k, जो हम लोग एक्स एक्सिस में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस तरह से हम देखें तो ये एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स देगा, जिसमें से ये सेमी मेजर एक्सिस है और ये सेमी माइनर एक्सिस है.
एक इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए के जगह पे ये, बी के जगह पे ये पुट कर दिए हम लोग, तो ये इक्वेशन हमको स्क्वायर करने के बाद, सॉल्व करने के बाद इस मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस टर्म को पहले लिखेंगे और इस टर्म को बाद में लिखेंगे और के कॉमन ले लेंगे। के जैसे इससे कॉमन लेंगे, चूंकि नीचे में के का टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा 2e डिवाइडेड बाई के, और यहाँ पे के कॉमन लेने के बाद पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ये सिर्फ इस टर्म में लिया गया है, इज इक्वल टू हाफ। के को हम लोग नीचे ले गए हैं यहाँ पे डिवाइड करने के। तो ये क्वेश्चन है, सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन नंबर 1। सो फॉर a constant energy E, equation 1 describes an ellipse in the phase space in the QP plane, that is Q और ये P plane. The phase points are those lying on the elliptical path with ellipse having the semi major axis root over 2e divided by k, जैसे पहले बताया गया, and semi minor axis of root over 2me. At any particular instant, the phase of the oscillator is represented by the some point on the ellipse. Now area of the ellipse. हम लोग जानते हैं area of the ellipse होता है A is equal to pi AP, where A is the semi major axis and B is the semi minor axis. दोनों का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको ये टर्म मिलेगा 2 पाई, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा 2 पाई, ई और ई मल्टीप्लाई होगा ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा ई, अंदर में रह जाएगा टर्म एम डिवाइडेड बाई के, तो ये हो गया 2 पाई ई रूट ओवर एम डिवाइडेड बाई के। The area represented the classical phase space available to the oscillator having the energy between 0 and capital E. The phase space available to oscillator having energy between E and the neighboring point D, E plus D, is given by delta A is equal to 2 pi, E के टर्म में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, ये कांस्टेंट है, सिर्फ ई में चेंज होगा, इसलिए ई के जगह पे हो गया ये डेल्टा ई। दिस रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ द स्टेट एक्सेसिबल टू द ऑक्सीलेटर। ये एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल फेज स्पेस के रिस्पेक्ट में लिए क्यू और पी कोऑर्डिनेट में कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग फेज स्पेस का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग 3 कोऑर्डिनेट लिए हैं, पी जेड, पी एक्स एंड पी वाई। इस कोऑर्डिनेट में मोमेंटा कोऑर्डिनेट है ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। पहले देख ले। Let us consider volume of the momentum space lying between the values of the total momentum P and P plus dP. P यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल है P और dP के रिस्पेक्ट में हम लिए। A small element of momentum space with coordinate in the range P plus P to P plus dP, theta to theta, theta plus d theta, and phi to phi plus d phi is shown in the figure. ये कोऑर्डिनेट है फाई, ये है थीटा और ये है पी। तीनों कोऑर्डिनेट में इसका स्पेस का हम लोग ड्राइव किए हैं। ये एक वॉल्यूम है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड किए। द एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज अ पोलर कोऑर्डिनेट पी थीटा एंड फाई। सो पोलर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में सारा कोऑर्डिनेट हमारा काम करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इज गिवन बाय पी के रिस्पेक्ट में डीपी, पी के रिस्पेक्ट में हमारा डीपी, उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में पी थीटा, पी डी थीटा, पी हमारा टर्म रहेगा और डी थीटा का टर्म रहेगा जो यहाँ पे हमारा इस कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेगा। और फिर नेक्स्ट टर्म जो है पी साइन थीटा डी फाई, पी साइन थीटा डी फाई, ये टर्म जो रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1। अगेन हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो तीनों कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। तो थीटा का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 से पाई 180 डिग्री के लिए है, और फाई जो कोऑर्डिनेट है हमारा फाई, ये 360 डिग्री के लिए है, इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से 2 पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेट करने के बाद 0 से पाई, इसका वैल्यू हमारा मिलने के बाद 2 पाई,
और यहाँ का भी वैल्यू हमको 2 पाई, इस तरह से हमारा टोटल वैल्यू जो आएगा 4 पाई पी स्क्वायर डी पी आएगा। इसका वैल्यू हमारा आएगा 2 पाई, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2 पाई, और 2 मल्टीप्लाई के बन जाएगा 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। ये इक्वेशन नंबर 2। This volume is the same as the volume of the spherical cell of thickness dp lying between P and P plus dp. Now we shall express the volume of the phase space delta tau in terms of volume d tau. तो हम लोग क्या करेंगे कि रिलेशनशिप यूज करेंगे, डेल्टा टाउ इज इक्वल टू 4 पाई पी स्क्वायर डीपी के जगह पे हम लोग यूज करेंगे के बाद टर्म यूज करेंगे हम लोग उसका वॉल्यूम कंपोनेंट, दैट इज एक्स डी एक्स डिवाइड डी जेड। यहाँ तक हम लोग किसको रिस्पेक्ट में कर रहे थे, मोमेंटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा v डी एक्स डिवाइड डी जेड, हम लोग जानते हैं v, इक्वेशन नंबर 3। The element of the phase space can also be expressed in terms of kinetic energy. Kinetic energy का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोमेंटा के रिस्पेक्ट में होता है E is equal to p square divided by 2m, where m is the mass of the particle. Therefore p is equal to root over 2me and dp is equal to, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 2e पावर हाफ, और e का डिफरेंशिएशन de। इसके वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सो ये टर्म आएगा मेरा, सॉल्व करेंगे तो 2m का पावर 1, तो m का पावर हाफ, और पावर 1/2 हो जाएगा पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर भी है टर्म, यहाँ पर भी टर्म है, और एप्सिलम का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर नीचे में 1/2 है, ऊपर माइनस हाफ है, तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ पे हाफ, डी रहेगा, बी रहेगा। यहाँ से एक 2 को हम लोग इसमें डाल देंगे, तो ये 2 पाई 2m 3/2 एप्सिलम पावर हाफ डी ई वी, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, काफ़ी इजी डेरिवेशन है। सो इक्वेशन 3 and 4 आर द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द गिवन एनर्जी रेंज ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। फॉर वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर द एरिया ऑफ फेज सेल इन फेज स्पेस इज गिवन बाय, किसी x के लिए अगर हम लोग लें तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जिसमें लेस देन इक्वल टू का साइन हम लोग हटा दिए हैं, ओमिट कर दिए हैं। हम लोग जानते हैं हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का एनर्जी का इक्वेशन ये होता है, यहाँ पे हम लोग q के जगह पे x यूज कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट पी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, e को यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया पी एक्स, ई यहाँ डिवाइड हुआ तो 2me हो गया, और यहाँ पे फिर के एक्स स्क्वायर, के टर्म को नीचे लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ई नीचे डिवाइड हुआ, डिवाइड बाई के, इक्वेशन नंबर। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एलिप्स विद द सेमी मेजर एक्सिस ए इज इक्वल टू दिस एंड सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल टू दिस। फिर इसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, एरिया हमारा इस तरह से निकलेगा, इसको हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, क्योंकि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है तो इसका एक फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर के डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर, इसको रेसिप्रोकल ले लिए, तो रूट ओवर एम बाई के इज इक्वल टू हो गया 1/2 पाई न्यू, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 and 3 से हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ फेज स्पेस क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ फेज स्पेस इस टर्म के जगह पे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के जगह पे ये वाला टर्म यूज करेंगे 1/2 पाई न्यू, तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ई बाई न्यू हो जाएगा। इस तरह से द नंबर ऑफ फेज सेल इज इक्वल टू क्या होगा, अगर नंबर ऑफ फेज सेल्स फाइंड करने चाहें, सो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द फेज सेल डिवाइड बाय एरिया ऑफ द फेज सेल, फेज स्पेस डिवाइड बाय फेज सेल। फेज स्पेस कितना आया है हमारा, ई बाई न्यू, और फेज स्पेस का सेल का क्या होता है, ये हम लोग फाइंड किए थे h, क्योंकि 3 के लिए एच क्यू फाइंड किए थे, तो एक के लिए क्या होगा h, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा नंबर ऑफ फेज सेल इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एच न्यू, ठीक है।